So guys, what's up? This is me Naveen Giri back again with another video। और जैसा कि अभी तक हमने बात किया कि मैं हूँ, मेरे एक तरफ है सब कुछ और मेरे एक तरफ है कुछ नहीं। अगर हम आउटसाइड जाते हैं तो एवरीथिंग विच लीड्स टू स्पेस टाइम, और दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पे कहाँ पहुंचते हैं हम लोग कि मुझे रियलाइज होता है कि आई एम नथिंग। एक तरफ है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दूसरी तरफ है I इज इक्वल टू एस प्लस सी साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। उसके आगे जब हम जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? टुवर्ड्स और सुप्रीम सेल्फ, दैट इज इनटू नथिंगनेस। तो वहां पे जब पहुंचे थे तो हमको समझ में आया था कि हमने बात करी थी कि वी रीच अ पॉइंट जहां पे इंफिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। एंड आई सेड कि दिस इज द पॉइंट जहां पे वी गेट अ सिंबल जो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द सिंबल, वो मैं हूं जरा यहाँ पे। एंड आई सेड दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। एंड व्हेन वी राइट आई एम नॉट, this I am not, this is the symbol of silence। अब ये है क्या? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था समझने का कि ये चीज दोनों है क्या। अगर हम इसको ओपन करते हैं, दिस थ्री थिंग्स आर द अल्टीमेट स्टेटमेंट, दिस इज द अल्टीमेट ऑफ साइंस, दिस इज द एंटायर एब्सोल्यूट साइंस। इनकॉर्पोरेटेड विद इन science of individuality, this is this iOS science of individuality। ये इसके अंदर आता है, बाकी सब कुछ बाहर है। this entire is science of individuality within which this is absolute science where infinity plus 1 is equal to 0 and me I am not। अब ये me I am not है क्या एक्चुअली में? this is not me एक्चुअली में, this is the symbol of unity। इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, अगर एलोबोरेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? this is like this and E। This is the shortcut of Naveen, N-A-V-E-E-N, Naveen। When I lost myself, my name is everything, I lost it, then what I got is this me। This is the boundary of nothingness। Now look at it very clearly, बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो if we start from here, this position, it looks like it's me, but when we start from here, we remove this line, what we get is V, that means this is I। so the equation of unity is I plus me plus V is equal to us, and us means is equal to all। so this is the symbol which represents not equivalent to, it's equal to all in one, one in all। that's it। this is what the symbol of unity is all about। this is symbol is known as SYM, symbol of unity। so if you remove Y from unity, what is this? unit। so this is the smallest unit of measurement possible। no one in the entire universe, not even the supreme God, can divide this, because this is the symbol, this is the basis of everything। यही है जिससे शुरुआत होती है, यही है जिस पे अंत होता है। that means ये ऐसा है, यहाँ से भी इधर ही है, इधर से भी इधर है, इधर से भी इधर है, इधर से भी इधर है। you cannot define it। ये है, दिस इज नोन एज ऑल्सो इंस्टेंट। ये बस ये है, यही शुरुआत है, यही अनंत है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसे जोड़ा नहीं जा सकता, बस ये है। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ यूनिटी, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट। मैं ही मेरा, आई एग्जिस्ट एंड आई एम द प्रूफ ऑफ माई एग्जिस्टेंस। नोबडी कैन प्रूव मी, बिकॉज आई एम द प्रूफ दैट एवरीथिंग एग्जिस्ट एंड नथिंग एग्जिस्ट एज वेल। एज सिंपल एज सॉर्टेड ये चीज है। so this symbol is I plus me plus V is equal to us and S is equal to all, so all in one and one in all। this is what this symbol of unity represents। this is here। now what is I am not? I am not is, it's written like this, me, symbol of unity, and I am, this is me, I am, the supreme position कि मैं हूँ, I know that I am। now when you go inward, it's not means no, think,
no thought, no time, no truth. This is what this not means. When you move inside here, from here, this position, here, this position is this position. I am not, मैं हूं पर मैं नहीं हूं. It's like कि I am but I am not. The end. This is what Amin is all about. The end. I am nothing since the beginning till the end. Amin. The end. इस पे ना सवाल किया जा सकता है ना जवाब ढूंढा सकता है. यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है वो जीरो हो जाती है. दिस इज लाइक तुरिया स्टेट. यहाँ पे पहुंच जाते हैं. बट वेन यू गो आउटसाइड, हियर माइंड इज इक्वल टू 1, memory is equal to 0. Hit side, mind is also 0. Here mind is 1 and some memory is also there. So here it is no think, think, no thought, no time and no truth. Simple. यहाँ पर डिफरेंस क्या है इस दोनों में? दिस इज थिंक, नॉन फिजिकल. This is non-physical. This includes physical. Outer world, things. It includes things. It includes think. It's within. It's outside. So this is very simple difference, but the one word difference makes the entire difference. एक ही difference काफी है सब कुछ differentiate करने के लिए. That's it. As simple as that. वो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है. दिस इज मैं हूँ. माइंड, आई एम क्लियर दैट आई एम हु आई एम. आई नो दैट आई एम. नो आइडेंटिफिकेशन. दिस इज आइडेंटिटीलेस आइडेंटिटी. नाउ इफ यू गो इनवर्ड, you don't need any identity because I am the source of all the identities. If you go outwards, things get associated with you. Thoughts become thing and it takes physical form. Then you connect, your mind connects with different identities and it creates some identities and accept it and adapt it and act according to it. कि तुम किस पे कितना ज्यादा टाइम लगाते हो वो आपके बिहेवियर में आ जाएगा. देन कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा एंड देन वही आप उसकी के अकॉर्डिंग आप फंक्शन करने लगते हो. दिस बॉडी बिहेव्स लाइक दैट. दिस इज व्हाट दिस एंटायर साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड आईएस ऑन विच लाइफ ऑपरेट्स. वेयर मी आई एम नॉट वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर. And to reach that level from here to here, a journey from here to here is called world's first spiritual entrepreneurship program, that is Mepreneur. Who are Mepreneurs? The supreme beings, those who explore their own selves. The sadhus, the yogis, the mahatmas, जो अपनी जिंदगी को जीते हैं उसकी चरम सीमा तक और जान जाते हैं कि मैं कौन हूं. मैं नहीं हूं पर मैं हूं. Point of coexistence which cannot be proved, but it exists. Only those people know that, those who are there living at that very particular instant. जो यहाँ है, यहाँ जी रहे हैं, यहाँ जी रहे हैं, यहाँ है, वो है, बस. No need of representation because I am the source of all the representations. So this is what this state is known as. This state is the supreme source. So if you want to move this in this direction, all you need to do is think nothing and visualize nothing. कुछ नहीं है, सब मोह माया है. When you reach at this point, that Maya becomes your beauty. It's Leela. You can create anything out of nothing. You can manipulate energy. You can change things the way you want to, but you will not change because those who are here, they know it's a part of karma. It's nature. You cannot disturb it. जो डिस्टर्ब करेगा उसका फल मिलेगा. इफ यू डोंट डू एनी कर्मा देयर विल बी नो रिजल्ट्स, नो इनपुट नो आउटपुट. एज सिंपल एज दैट. इज एट दिस पॉइंट, एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट हैपेंस? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. खत्म. नो स्टोरेज एट ऑल. हियर इट्स देयर स्टोरेज एज मेमोरीज, baggage that we carry as emotions are stored within it. So this is pure consciousness. So this is what entire science of individuality is all about. This is symbol of unity and this is symbol of silence. Silence inside out. तो मैं कौन हूं? ये अगर मैं हूं तो मेरे आसपास क्या है?
मैं शांत हूं, एकांत हूं, मौन हूं, यही हूं मैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of measurement possible, the instantaneous moment. I am alive each and every instant. I am the instant. I am the source of them all, and I am nothing. That's it. So this is what science of individuality, this entire concept is here, which leads to absolute science. This cannot be experienced by other person. तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीना होगा, चाहे तुम कितना भी जान लो. जानने और जीने में फर्क है. आप जान तो गए हो, this is just an information which can be converted into knowledge, but wisdom will come only when you experience it by your own self, and this can be experienced only by losing everything behind. क्योंकि यहाँ तो हम पहुंच जाते हैं पढ़ पढ़ के, ज्ञान योग से, कर्म योग से हम यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके आगे सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति योग. भक्ति के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है. That's it. इसीलिए लोग छोड़ के सब कुछ इधर आ जाते हैं यहाँ पहुंचने के लिए, ऐसे पॉइंट पे जहां पे हर चीज आपके कंट्रोल में है. यू आर द क्रिएटर, यू आर द ऑपरेटर, एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. यू आर द डेस्टिनेशन. इसको कहने के लिए छोटा सा एक स्टेटमेंट है कि मंजिल, राह की फिक्र, रास्ते की फिक्र क्यों करते हो जब मंजिल तुम ही हो. जिस दिन ये बात समझ आएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. This is where in this direction, this is the third eye opening. When you reach here, this is third eye view. Third eye. Third eye opens and everything is the end. Khatam. ये हो जाता है. This is what the symbol of silence is all about. यहाँ पे शांति है, हर तरफ शांत, वहां कोई कुछ भी नहीं है, एकांत है, कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है. यहाँ पे शांति है, मीन्स दिस इज एब्सोल्यूट लाइन विच लुक्स लाइक दिस. इट्स डेड बट इट्स नॉट, इट्स टोटली अलाइव विथ इट. इस बॉडी से कॉन्शियसनेस चली गई है, बट कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज कॉन्शियस, सो इट्स एवरीवेयर. इसलिए बोलते हैं मौत के बाद कोई कहीं जाता नहीं है, वो आत्माएं यहाँ भटकती रहती है, मुक्त हो जाती है. मुक्त होने के लिए आपको यहाँ तक आके अपने आप को मुक्त करना पड़ेगी, अपनी आजादी अपने हाथों में रखनी पड़ेगी. इट्स नॉट अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट साल्वेशन, मुक्ति. फ्रीडम इज मेंटल लेवल. इधर पे फ्रीडम किया, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम इमोशनली फ्री, आई एम ये फलाने ढिमकाना फ्रीडम. बट द प्योर फॉर्म ऑफ फ्रीडम दैट एग्जिस्ट इज मुक्ति, विच इज ओनली पॉसिबल बाई भक्ति. वो तभी होगा जब आई को निकाल दोगे आप. आई विल रिमूव दिस आई, दिस पोर्शन ऑफ दिस इज मी. बट वेन यू रिमूव आई फ्रॉम हियर, व्हाट यू गेट? वी. वी मीन्स मैं प्लस मैं और मैं. दिस इज माइंड, दिस इज सुप्रीम. When they collide, what we becomes is this. यही तू मैं हम कल बात करेंगे. This is where things happens. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? दो चीजें. पहली क्या है? भक्ति एंड शक्ति. अब इसमें से अगर हम आई को निकाल देते हैं, we remove आई यहाँ से, व्हाट इज भक्त एंड शक्त? भक्त वही जो शक्त है, जो रास्ता उसने चुन लिया, उस पर आखिरी मंजिल तक पहुंचेगा जब तक उसे कुछ नहीं दिखता है. When you are able to see nothing, you will be able to create anything out of nothing. All you need to do is to become the one who is not. That is me, I am not. World's first spiritual entrepreneur. It's not about the physical body. This is the supreme mind. I am here, moving inward. But when I reach there, I cannot communicate because it's zero. It's absolute silence. It's absolute nothingness. But stillness. ये वो लोग होते हैं जो गुफाओं में सालों साल तक साधना करते हैं. उनके सामने नतमस्तक हो, उनकी एनर्जी को महसूस करो. उन्होंने सिर्फ आपकी तरफ देख लिया ना तो आपकी जिंदगी बदल सकती है. ये उनकी शक्तियां होती है, जो सिद्ध गुरु होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं. जो मार्केट में घूम रहे हैं वो तो सब ऊपर है, सिर्फ आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं. आपको सामान दे दिया, वहां पर आपका मन उलझ गया. आपको एक सोच दे दिया, आपका मन उलझ गया. आपको टाइम स्पेंड करने के तरीके बता दिए, आपका मन उलझ गया. आप बोलते वाह वाह मजा आ गया. बट द थिंग इज फ्रीडम, वो इधर से आ सकता है. तो फ्रीडम पाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं. या तो आपको कोई गुरु आपको रास्ता दिखाए, यहाँ तक लेकर आए, जो सिद्ध होगा वो वही कर सकता है. ठीक है. दूसरा क्या है? अब वो मैं नहीं हूं, मैं तो बस यहाँ से रास्ता दिखाना मेरा काम है. मुझे सिर्फ इतना बताना काम है कि कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है. नथिंग सेज आई एम पॉसिबल. इट्स नॉट इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. इट्स नथिंग हु सेज आई एम पॉसिबल.
स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है. सो दिस इज व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड एब्सोल्यूट साइंस इज ऑल अबाउट. दिस इज हु आई एम, दिस इज हु the me I am not. World's first spiritual entrepreneur is all about. This is what the mepreneurship program is all about. And if you want to dig deeper into it, I know something I can share with you. So if you want to join this, just dive in and dig deeper within yourself. You will reach this state for sure. मुझे यहाँ से यहाँ आने में 3 साल लगे, 5000 से ज्यादा पेजेस लिखने पड़ेंगे. यहाँ से आने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगा. इट्स द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन दैट इज हैपनिंग. पहले दिन ही यही चीज हुआ था, बट यहाँ से यहाँ आने में थिंग्स चेंज. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल, वेरी एक्साइटिंग, वेरी एनर्जेटिक. कि जब रूह जाग जाती है ना, तो इंसान कभी सोता नहीं, वो हमेशा के लिए जाग ही जाता है. वो जान जाता है कि मैं नहीं हूँ. और जब ये पता लग जाता है ना, तो सब मोह माया लगने लगता है. यू हैव द पावर टू मैनिपुलेट थिंग्स, बट डोंट डू दैट. बाकी बहुत सारी चीजें हैं, विल डिस्कस इट. अभी के लिए सिर्फ सिंबल ऑफ साइलेंस एंड सिंबल ऑफ यूनिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट. बाहर जाओगे तो आप ऐसी जगह पे बैठोगे जहाँ शांत हो, एकांत हो और मौन हो, तो ये मी हो जाएगा. दैट मीन्स ये मी वाला जो है वो मी माइंड हो जाएगा. मी इज इक्वल टू माइंड. अब इसकी गहराइयों को समझने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए, टू रीड द बुक. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दिस बुक इज द रियलिटी हु इज ऑलमाइटी गॉड. वहाँ पे ये जर्नी है यहाँ से यहाँ तक की, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड द सुप्रीम गॉड. ये चीजें यहाँ पे होती हैं. एंड ये रेस्ट चीजें हम बाद में बात करेंगे. आगे की चीजें क्या है, ये भूतू में हम कल बात करेंगे. इससे पहले की जो चीजें अब हमने बात कर लिया है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट बिलो, यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन रीच मी बाय यूजिंग द हैशटैग मी नवीन गिरी, और यू कैन विजिट माय वेबसाइट जो भी बन रही है या बनेगी शायद से, पता नहीं, myinvestor.in. तो अपने अंदर झांको. सबसे शॉर्टेस्ट तरीका वही है, किसी की मत सुनो. सब आपको अलग अलग तरीके बताएंगे. द बेस्ट वे इज योर ओन वे. क्रिएट योर ओन पाथ एंड मूव ऑन इट until you reach nothingness. Just dive in and observe, take inside it, that's it. करके देखो, अच्छा लगेगा. और अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में, अपने आप को अपनाने में, अपने लिए और अपने लिए अच्छाई करने में और सच्चाई का साथ देने में कोई बुराई नहीं है. एंड यस, शेयर इट with the people who want to explore the new dimensions of life. That's it. Amen.